Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Write down your name, school name in chat box. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, beta. Ma'am, please start the class. Yes. Navdeep Kaur, beta K capital. School name first letter capital. Take care of these things. This girl Churi Yes, ma'am. and C will be capital. Write properly, na? Okay, ma'am. Okay, ma'am. मैम Yes. मैम आपने पिछली क्लास में बताया था कि आई हमेशा मैम कैपिटल होता है। अगर मैम आई सेंटेंस के मैम बिटवीन में आ जाए तो मैम तब भी बड़ा होगा Yes. कैपिटल। कैपिटल होगा। Always capital. Always capital. हमेशा। Starting में है, last में है, बीच में है. It will be is I is always capital. Okay. मैम जब हम मैम किसी का भी नेम लिखते हैं तो मैम नेम लिखने के बाद मैम पीछे मैम हम लिखते हैं मैम कौर या फिर मैम सिंह मैम ओ तो उसका भी मैम कैपिटल होता है लेटर। Yes. देखो, just 1 minute. मनदीप, नेम कैपिटल, ठीक है, और के कैपिटल। ओके, नेम, सरनेम, ये आपका नेम है, दिस इज योर सरनेम। आई थिंक कौर आपको कौर इज सरनेम इन पंजाब और मिडिल नेम। मैम सरनेम तो मैम वो होता है मैम जो मैम हम होता है मैम जिससे हमें सभी बुलाते हैं। मैम जो नेम के पीछे लगता है उसे सरनेम कहते हैं। हाँ, लेकिन है ना कुछ मिडिल नेम भी यूज करते हैं, जैसे आपके जर्नली लड़कियों के पीछे कौर लगाते हैं ना। यस मैम। यस मैम, कुमारी भी लगाते सभी के पीछे, और लेकिन उस कौर के बाद भी कुछ लगाते हो ना कुछ, तो दैट इज सरनेम, दिस इज मिडिल नेम। अदिति साई शर्मा, ए कैपिटल, एस कैपिटल, एस कैपिटल। ओके, लोकेशन जगह आप बता रहे हैं, ठीक है। यस मैम, मैम पीछे मैम अपना मैम गोत लगाते हैं। यस, नाउ टुडे वी आर गोइंग
to discuss part of speech in our English grammar. ठीक है, on Monday onwards we will start this noun types of noun, and so many things are there in noun, and it is मैम आपके Charanjit, please repeat again. Beta, आपके your voice was not clear. Repeat again. Charanjit, you were asking something. मैम आप क्या करा रहे हो? Part of speech. मैम आप क्या करा रहे हो? मैम ओके। Is this clear to you, the screen? Yes, ma'am. Okay, part of speech in English grammar. Okay, Monday onwards we will start noun, types of noun, and all exercise related to noun. Today we are going just for an overview. हम आज इसका एक overview करने वाले हैं कि आप इन 8 part of speech में कभी कभी किसी बच्चे को confusion हो जाती है, तो that confusion should not be there. ठीक है, because this is basic of our English grammar. Now noun, verb, adverb, कभी कभी adverb, verb में confusion हो जाती है कि how to find out these in sentences में कैसे इसको find out करें. preposition conjunction में words का confusion हो जाता है कि ये word preposition है, क्योंकि कुछ words preposition भी होते हैं, conjunctions भी होते हैं, लेकिन exactly preposition क्या करता है sentence में और conjunction क्या करता है, so there is a difference in that, so we will discuss that thing also. Okay, for this thing now, let's take it this way, like noun. मैम हमें Charanjit, your voice is breaking. So do one thing, write down in chat box, beta. It's not clear. Clear? Yes, ma'am. Although there is no such rule कि आपको इनको ऐसे grouping करनी है या फिर आपको इनको ऐसे करना, but we are doing it for just to remember. ठीक है, इनको learn करने के लिए we are doing this. Noun is the name of a person, place or thing. ठीक है, जिस sentence में हम जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, that is noun. Now pronoun. Pronoun is a word which is used in place of noun. Noun की जगह जब हम pronoun word use करते हैं, तो that word is pronoun. Adjective. Adjective what it tells more about noun. Noun के बारे में हमें additional information देता है. ठीक है? Adjective tells about noun. Now let's take an example for this. Let's say our noun is cat, ठीक है, and girl. ये हमारे नाउन है, लेकिन कैट है. कैट कैसी है? ठीक है, ब्राउन कलर कैट है, व्हाइट कैट है, फैट कैट है. हमें किस वर्ड से पता चल रहा है मोर अबाउट कैट? कैट के बारे में हमें ज्यादा किस चीज से पता चल रहा है? एडजेक्टिव से. ठीक है, व्हाइट कैट है, फैट कैट है. अब दो एडजेक्टिव अगर इकट्ठे लिखते हो ना, तो यू विल यूज कॉमा. सो these words tell us about more about cat. cat के बारे में हमें additional information दे रहे हैं. So these are adjectives. What we call them? Girl है, आप simple बोलते हो one girl is there.
in second sentence you are saying a beautiful girl is there, so beautiful is an adjective. ठीक है, गर्ल कैसी है, तो किसके बारे में बता रही है ये, गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट गर्ल. सो वन थिंग टू रिमेंबर कि वी ऑलवेज राइट एडजेक्टिव ऑन लेफ्ट साइड ऑफ आवर नाउन. नाउन के हम लेफ्ट साइड में एडजेक्टिव लिखते हैं. क्लियर? यस मैम. ठीक है, जब भी आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है ना, एडजेक्टिव किसके बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा, और आपको उसको नाउन से लेफ्ट साइड में जो वर्ड्स होंगे वो आपके एडजेक्टिव होंगे. आपको इसमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना कि आप एडजेक्टिव कहीं पे भी ढूंढ रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है. ऑलवेज रिमेंबर adjective will be on left side of the noun. So this way you can find out adjectives. और adjective will always, जो भी हम noun है ना उसके बारे में बताएगा, whether noun is tall, लंबा है, fat है, short है, brown hair, blue eyes. ठीक है, noun कैसा है, so adjective will tell us about this. Is this clear what an adjective is? यस मैम. यस मैम. बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, जैसे वर्ब और एडवर्ब में ना कंफ्यूजन हो जाती है कि हाउ यू विल डिफरेंशिएट देम, आप इनको अलग कैसे करेंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर एडजेक्टिव सिर्फ नाउन के बारे में बताएगा, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगा, जबकि वर्ब और एडवर्ब वी आर कैटेगराइजिंग देम इन वन ग्रुप. तो एडवर्ब किसके बारे में बताएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में देगा, वर्ब के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा. ठीक है, जैसे वर्ब है, वर्ब इज एक्शन. सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, रनिंग हो रही है. ठीक है, रन, रन इज एक्शन. लेकिन रनिंग कैसे हो रही है, स्लो, फास्ट, आप कैसे रनिंग कर रहे हैं, सो दैट विल रन. लेकिन अब मैम हमें चरणजीत बेटा चरणजीत बेटा योर वॉइस इज ब्रेकिंग. आप है ना चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज. और इज इट एनीवन इज क्लियर विद चरणजीत ने क्या बोला है, कैन एनीवन टेल मी? नो मैम, मैम हमारे पास भी मैम ब्रेकिंग. चरणजीत राइट डाउन इन चैट बॉक्स बेटा योर वॉइस इज ब्रेकिंग. तो आपकी रनिंग हो रही है, रनिंग कैसे हो रही है, फास्ट है, स्लो है. ठीक है, हमारा एक्शन कैसे हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, एडवर्ब से. ओके, एडजेक्टिव नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन कैसा है. ठीक है, और एडवर्ब हमें हमारा एक्शन को डिस्क्राइब करता है कि एक्शन कैसे हो रहा है. क्लियर? यस मैम. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. एडवर्ब और एडजेक्टिव में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. क्लियर? एडजेक्टिव लेफ्ट साइड में होगा नाउन के, और ये वर्ब को एक डिस्क्राइब करता है, तो ये राइट साइड में होगा, किसके, वर्ब के. ठीक है, क्योंकि एडवर्ब किससे रिलेट करता है, वर्ब से. सो आपके वर्ब के राइट साइड में आप इसको, इसकी पोजीशन राइट साइड में होगी और इसकी पोजीशन नाउन के लेफ्ट साइड में होगी. क्लियर विद दिस? यस मैम. मैम. यस आस्क बेटा. यस नवदीप कौर आस्क. मैम, मैम जैसे कि मैम जो एडवर्ब है मैम, यूजुअली मैम जो एडवर्ब होते हैं मैम उनके साथ मैम ly यूज होता है. तो मैम ये कंपल्सरी है मैम, इम्पोर्टेंट है कि कोई भी मैम वर्ड जिसके साथ ly होगा वही ओनली एडवर्ब होगा, कोई और एडवर्ब नहीं होगा. These rules है ना, we will discuss जब हम verb और adverb करेंगे ना, we will discuss in details at that time. ठीक है, ये जो आपको these are shortcuts जो मैं भी बता रही हूँ ना, ये ग्रामर का कोई रूल नहीं है कि आपको इसको ऐसे ग्रुप करना है. ओके,
और ly भी लगाना इज नॉट आई मीन दैट व्हाई दैट ly बिकम्स कुछ वर्ड्स है ना नाउन होते हैं, लेकिन अगर आप उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स ऐड कर देते हैं, तो वो वर्ब कुछ और भी बन सकते हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड है बिफोर, बिफोर प्रेपोजिशन भी होता है, कंजक्शन होता है। वैसा क्यों होता है, जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे ना, वी विल डिस्कस इट देयर, ओके, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। आज मैं आपके सिर्फ इन वर्ड्स को, इन पार्ट्स को क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब में जब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया कि आप इसको याद कर सके कि वर्ब एडवर्ब से रिलेटेड है, नाउन एडजेक्टिव से रिलेटेड है, ठीक है। और ये वन भी है, वन मोर ग्रुप, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। मैम कोई मैम स्क्रीन पे मैम एरोस लगा रहा है। यस मैम। यस मैम। Who is this? ये होस्ट किसने नाम रखा है? टर्न ऑन योर वीडियो, आई वांट टू सी योर फेस। हु इज दिस होस्ट? यस, स्टार्ट योर वीडियो। Okay, preposition, conjunction and interjection. Preposition tell you about position. Now how to remember that? Just 1 minute. Pre, pre means before, ठीक है। Preposition जो आपको पहले पोजीशन बताता है, pre means before position, ठीक है। Preposition, preposition. Is this clear? How to break this word? यस मैम। Yes, ma'am. Now how it tells you the position? The ball is on the table, ठीक है। एक टेबल है, उस पे एक बॉल है। What you will say? The ball is on the table. बॉल क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। प्री मीन्स पहले, इस प्री का मीन्स है नाउन से पहले। टेबल नाउन से पहले हमने किसको यूज किया? प्रेपोजिशन को। ऑन इज प्रेपोजिशन, ठीक है। ऑन इज प्रेपोजिशन, नाउन से पहले प्रेपोजिशन को यूज करते हैं एंड इट टेल्स यू अबाउट पोजीशन। ये आपको पोजीशन बताता है। इट टेल्स पोजीशन। क्लियर? प्री मीन्स बिफोर द नाउन, नाउन से पहले आपको इसको यूज करना है एंड इट विल टेल यू द पोजीशन। किसकी पोजीशन? द बॉल की। देखो, द बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल कहाँ है? टेबल पर है। आपको किसकी पोजीशन पता चल रही है? टेबल की या बॉल की? बॉल अगर आपको बॉल के। अगर आपको टेबल की पोजीशन पता करनी है, व्हाट यू विल से? टेबल की पोजीशन कैसे पता करेंगे? देखो, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। वी हैव वन रूम। हम कहेंगे द टेबल इज ऑन द फ्लोर। यस, देखो, वी हैव वन रूम, ठीक है। ये टेबल है, इस पे हमारी बॉल है। ये सोफा सेट है, दिस इज योर बेड, यहाँ पे कर्टेन्स है, ओके। नाउ इन दिस, किस चीज की पोजीशन कहाँ है? हाउ यू विल टेल, ठीक है। आप किसी न किसी चीज को रिलेट के दूसरी चीज से रिलेट करेंगे, तभी आपको पोजीशन पता चलेगी ना। आप सिंपल इस बेड की पोजीशन बोल सकते हैं। बेड कहाँ है? आपको बताना पड़ेगा ना कि बेड सोफे के साइड में है, कर्टेन के पीछे है, ठीक है, नेक्स्ट टू सोफा सेट है। आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ रिलेट करके बताना पड़ेगा। स्क्रीन इट नॉट विजिबल? मैम विजिबल है। Yes, ma'am. स्क्रीन पर। ये पहले तो ना, ये होस्ट जो है ना, ये वीडियो ऑन करो। आई वांट टू सी हु इज द होस्ट फॉर द डे। कौन है ये होस्ट? वीडियो ऑन करो बेटा जल्दी से। हाँ जी, आई वांट टू सी यू।
अपना ओरिजिनल नेम डालो। यस, अब डालो या मैं आपको रिमूव करूं बेटा? व्हाट्स योर नेम? इट्स वेरी बैड, ये ठीक नहीं है। आपको एक दूसरे की कंपैरिजन में आपको बताना पड़ेगा ना कि किसकी पोजीशन कहाँ है। तो प्रेपोजिशन टेल्स यू अबाउट द पोजीशन, ठीक है। द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, अगर यहाँ पे बॉय बैठा है सो ही इज सिटिंग अंडर द ट्री। अगर यहाँ पे बर्ड बैठी है, द बर्ड इज ऑन द ट्री। सो व्हाट इज पोजीशन ऑफ वन नाउन? एक नाउन की पोजीशन क्या है? इट टेल्स यू अबाउट द पोजीशन। इज preposition clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Now, ma'am. conjunction joins two sentences. ये क्या करता है? ऐड करता है, ठीक है। कंजक्शन ज्वाइन करेगा, लाइक द cat is running, ठीक है। वन सेंटेंस इज द डॉग is, how you will join these sentences? Ma'am, Ma'am, the cat and the dog is cat running. and The the dog cat is and running. dog is running. The cat and dog is running. दो है ना, तो इज आएगा, आर आएगा। Ma'am, R. ओके, Ma'am, are. आपने एक सेंटेंस में बोला द कैट इज रनिंग, सेकंड सेंटेंस में बोला आपने द डॉग इज रनिंग, ठीक है। आपने जब इन दोनों को ज्वाइन किया तो किस वर्ड से आपने इनको ज्वाइन किया? And वर्ड से, ठीक है। कंजक्शन ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को कंजक्शन ज्वाइन करता है, दैट इज फंक्शन ऑफ द कंजक्शन, ठीक है। जब भी आपको कंप्लीट दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है यू विल यूज कंजक्शन। क्लियर? मैम यस। मैम कोई बच्चा है होस्ट नाम का, वो मुझे बार बार प्राइवेट मैसेज कर रहा है। अब वो उसने क्लास लेफ्ट कर दी। Yes, ma'am, मुझे भी कर रहा है। ओके, डोंट रिप्लाई टू सच पर्सन। ओके, चरणजीत, स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू बेटा? ओके, preposition will tell you about the position, ठीक है। कंजक्शन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा एंड इंटरजेक्शन विल एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। क्लियर? okay, ma'am. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब इस स्लाइड से हम इसको और क्लियर करते हैं। देखो, नाउन, प्रोनाउन और उस ग्रुप में क्या था नेक्स्ट? Verb and verb. नो, Ma'am, नाउन, इसको मैं Adjective. ma'am. Adjective. एडजेक्टिव, ठीक है। नाउ नेम ऑफ द पर्सन, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। सन क्या है? नाउन है। अन्ना गोज टू स्कूल, अन्ना स्कूल जाती है। नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, ठीक है। ये सेंटेंस में नाउन है। प्रोनाउन, प्रोनाउन जब भी हमें रिपीट करना होता है ना किसी का नाम या उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। दीज वर्ड्स आर प्रोनाउन, ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, आई, सो दीज आर प्रोनाउन। जॉन इज हंग्री, एक सेंटेंस है जॉन इज हंग्री, जॉन है नाउन। अब प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है। तो नाउन हमारा जॉन है, इसको अगर हमें रिप्लेस करना है तो हम व्हाट वी विल यूज? ही वांट्स टू ईट, सो आवर प्रोनाउन इज दिस। दिस इज शोइंग कि दिस इज रिप्लेस्ड बाय ही वर्ड। क्लियर? एज वी डिस्कस, एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन, नाउन नाउन के बारे में बताता है। एंग्री, ब्रेव, these words will tell you that something more about noun. Now check through this. देखो, डॉग है, डॉग, लेकिन डॉग इस यहाँ पे पता है डॉग का कलर कैसा है? so it is showing an arrow, it is telling more about this one. which one? Dog.
नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैट है, कैट कैसी है, फैट कैट है, ठीक है। इट इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड, एडजेक्टिव्स आर रिटन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नाउन ना। यस मैम। यस मैम। जब भी आपको एडजेक्टिव देखना है, आपको पता है कि एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताएगा, तो आपको लेफ्ट साइड में चेक करना है। इट इज ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट साइड। गार्डन, गार्डन कैसा है, इट इज अ बिग गार्डन। देन नेक्स्ट आ वर्ब एंड एडवर्ब, ठीक है। एक्शन होगा और एक्शन कैसा होगा, किस तरीके से काम हो रहा है, सो दैट डिस्क्राइब वर्ब। सो adverb also describe adjective and adverbs. We will discuss it in other class, ठीक है। अभी आप अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। अब meanwhile you just learn कि adjective describe verb, verb के additional information देता है, badly, fully, hardly. These words tell you how the work is done. See, it shows an action. Verb क्या करता है, action show करता है, run, go, have, laugh, listen, playing. So these are actions. The dog and cat are running. Dog और cat क्या कर रहे हैं, they are running. Adjective, sorry, adverb. Adverb tells more about verb. Runs, वो दौड़ता है, लेकिन कैसे, quickly. So adverb, verb is run and it quickly is adjective, वो दौड़ता है तेज. Eats, eat, action is eat, and very slowly, very is adverb. Now article, meanwhile we are living. मैम Yes, मैम बट यहाँ पे तो मैम स्लोली आना चाहिए मैम एडवर्ब। देखो जैसे हम एडजेक्टिव दो ज्वाइन कर सकते हैं ना, हमने यहाँ पे एडजेक्टिव, अगर यहाँ पे मैं बोलूं ब्राउन फैट डॉग, हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन यूज टू एडवर्ब्स आल्सो। जब हम एडवर्ब टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, वी विल डिस्कस इट फर्दर। क्लियर? यस मैम। Okay, ma'am. Articles, meanwhile I am leaving articles. I'm sorry. Now preposition, conjunction and interjections. Preposition will tell you about the position. I am going to my garden. मुझे किस वर्ड से पता चल रहा है मैं कहाँ जा रही हूँ, to, ठीक है। I am going to my garden. I is noun, garden is noun, so to word is telling me the position. It shows relation between two words. दो words में, दो sentences में कैसे relation कैसे है, ये show करता है. Conjunction joins two sentences, connect two words. Phases we will discuss, ठीक है। Phases क्या होते हैं, phases and clauses क्या होते हैं, इनमें difference क्या होता है. These are part of sentences. Conjunction words and, or, not, but, before. Can you see before and here in preposition also we have before. So ये word कब before conjunction बनेगा और कब preposition बनेगा, we will discuss it also, ठीक है। I was so tired, मैं बहुत थकी हुई थी, I went to sleep, तो अलग sentences है, लेकिन हमने इसको कैसे join किया, एक conjunction word so से इनको join किया। मैं थकी हुई थी इसलिए मैं सोने चली गई, I went to sleep. Interjection shows your strong feeling, आपकी strong feelings को express करता है। Like aha, gosh, great, hi, hooray, hopes. So these words expresses your strong feeling. Let's suppose you are saying to your friend, shh. क्या आपने उसको कोई सेंटेंस बोला है? No, ma'am. But with one sound, shh, आपने उसको मैसेज दिया है ना कि कीप क्वाइट, Yes, ma'am. ठीक है। देखो Yes, ma'am. कंजक्शंस का है ना, ये सिर्फ फीलिंग्स को शो करते हैं, ये ग्रामेटिकल आपके सेंटेंस को डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। देखो अगर मैं इसको ऊप्स ना नहीं लगाती, अगर मैं यहाँ से ऊप्स हटा देती हूँ, आई एम सेइंग आई स्पिल्ड द मिल्क, दूध गिर गया, ठीक है। आपको नहीं पता चल रहा मुझे दूध गिर गया तो गुस्सा आ रहा है या मैं हैप्पी हूँ, व्हाट आई एम फीलिंग, यू कैन नॉट जज मी कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मैंने सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दी, ठीक है, कि दूध गिर गया। लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ उप्स आई स्पिल्ड द मिल्क, दैट मीन्स उप्स आई एम फीलिंग सैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि दूध गिर गया, ठीक है। बाय मिस्टेक इट हैपेंड, ठीक है। सो
oops word is showing my expression, मेरी फीलिंग्स को बता रहा है। लेकिन अगर मैं oops word नहीं लगाती तो it is just a statement, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि दूध गिर गया। Clear what interjection is? Yes, ma'am. देखो when we will do interjections ना, we will discuss exclamation, exclamation versus, आपने इंटरजेक्शन सेंटेंसेस सॉरी एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस पढ़े हैं ना? Yes, ma'am. उसमें भी Yes, ma'am. exclamation Also express. Yes, ma'am. is that also expresses feelings, and here also. So what is the difference? We will discuss this in interjection. वहां पे grammatically it affects, grammatical effect होने का देखो क्या मतलब है, the dog is running, the cat is running, लेकिन जब आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो आपने ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर लगाया ना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर रूल्स यू आर यूजिंग आर, द कैट एंड डॉग आर रनिंग। सो ग्रामेटिकली यू आर करेक्टिंग योर स्टेटमेंट, आप अपने स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हो। यहाँ पे इंटरजेक्शन से इस सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट जस्ट शोज फीलिंग, यह सिर्फ आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, बट इन एक्सक्लेमेशन इट डज। क्लियर? See in English grammar है ना, only part of speech is not there, we have so many things, but we will complete this part first, पहले हम इस part को cover करेंगे, thereafter we will proceed for others। ठीक है? Okay, is there any particular topic where you face problem? No, ma'am. Okay, now on Monday we will do noun parts। ठीक है, we will discuss noun। just what are prefix? मैम जो मैम कोई भी मैम एक वर्ड होता है मैम, उससे मैम आगे आकर मैम उसका मैम मीनिंग बना लें। And if we are adding something after the word, what we call that? मैम जैसे कि मैम हमारे पास मैम एक वर्ड है इम्पोर्टेंट, मैम हमने मैम उसके मैम प्रीफिक्स में लगा दिया अनइम्पोर्टेंट, तो मैम उसका भी मैम वर्ड का एक मीनिंग बनता है। Yes, we have ना suffix, suffix में होते prefix and sorry affix, affix में होते prefix and suffix। pre means पहले, जो पहले ऐड कर दिया जाता है that is prefix, and what we add later on, जो हम बाद में करते हैं that is suffix। and this is also interesting topic। so first of all we will complete our part of speech, thereafter we will move forward। okay beta? Okay, ma'am. Now good night, yeah, good night for now, and let's see you on next class। okay, Good night, ma'am. good night, Good night, ma'am. Bye, ma'am. good Bye, night ma'am. मैम आप बाय मैम, गुड नाइट मैम। चरणजीत Bye, आप अभी बाय बेटा। चरणजीत रिपीट अगेन, योर वॉइस वाज ब्रेकिंग, आप ना रीज्वाइन करो एक बार। Ma'am, can we left now? यस बेटा, गुड नाइट, Bye, ma'am. बाय बाय।